let us in this lecture talk about a new concept, and that is about switching. Now, switching is nothing but the heart of modern day communication. Now, why is switching required, and what brought this concept of switching into action? So, let us first try to understand that, then we will again talk about switching. Now, what happens is, you see, say in this world there was only one telephone, okay? उसके बाद जो है एक दूसरा टेलीफोन आया, fine. So then these two were connected by a cable. Again, there came the third telephone. These were also connected by cable. There came the fifth telephone. They were also connected this way. There came the next telephone, the fifth. It was connected like this. There came the next telephone. It was connected like this. So now you can imagine, with the increase of one telephone, the complexity of the network is increasing like anything. And you can see when there are 1, 2, 3, 4, 5 and 6 telephones, so there were 5 wires coming out of each telephone, 1, 2, 3, 4 and 5. आज के ज़माने में हम अपने टेलीफोन से I can make infinite number of calls to different places. करोड़ों नंबर है, I can do STD, ISD, I can do telephone calls within the town itself, the city, the state, okay, country and so on, international calls. So अगर उतना तार एक टेलीफोन से निकला होता, so then ये होता कि तार हटा के टेलीफोन नहीं खोजा जा सकता. टेलीफोन को खोजने में टाइम लग जाता, उतना 1 करोड़ तार निकला हुआ टेलीफोन के पीछे से. तो यू कैन इमेजिन कि वो तो जंजाल होता घर के लिए. सो दैट इज वाई दे थॉट कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, दिस इज नॉट टू बी डन. सो वी नीड टू यूज सर्टेन स्विच. स्विच कहने का मतलब क्या हुआ कि यू मस्ट हैव सीन कि फ्रॉम द टेलीफोन देयर इज ओनली वन लाइन कम्स आउट. इफ यू हैव अ लैंडलाइन, इट गोज टू सम इलेक्ट्रिक पोल लोकेटेड नियर योर हाउस. इस इलेक्ट्रिक पोल में देर इज सम काइंड ऑफ अ बॉक्स, जिसमें जब तक एक आदमी चढ़ के झूलते रहता है और हेलो हेलो कुछ कुछ करते रहते हैं. मस्ट हैव सीन. दिस इज नथिंग बट अ स्विच. दिस इज नथिंग बट अ स्विच. तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ये जो स्विच है, फिर इससे तार निकल के इट गोज टू सम काइंड ऑफ अ डीपी बॉक्स, जो कि यू कैन सी इन दोज सब चौराहे के आसपास किसी कोना में लगा हुआ होगा. ढेर सारा तार निकाल के इसके अंदर से कुछ कुछ लगा हुआ है. सो दिस इज व्हाट इज अ डीपी बॉक्स. फ्रॉम देयर इट गोज टू द टेलीफोन एक्सचेंज. टेलीफोन एक्सचेंज. फ्रॉम देयर इट गोज आउट. फ्रॉम देयर इट गोज आउट, मे बी यूजिंग सम लीज लाइन, सम अदर लाइन और समथिंग. तो यहां पे देयर इज अ स्विच, हियर देयर इज अ स्विच, हियर देयर इज अ स्विच. And of course beyond there are also switches. तो डेस्टिनेशन जो है, इस डेस्टिनेशन के पास भी जो है, इस डेस्टिनेशन के पास भी एक टेलीफोन होगा और ये टेलीफोन इसके स्विच से कनेक्टेड होगा. ओके, सो नाउ व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्विचिंग. तब इस स्विच में कॉन्सेप्ट क्या हुआ, क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है. वॉच दिस. ये हुआ क्या, अ स्विच इज नथिंग बट a device like this. You know switches on off. Now say these are the outgoing lines. These are the outgoing lines. Okay, these are the incoming lines. So the incoming lines in the switch may be exactly the same as the total number of outgoing line, or these outgoing lines can be less than these incoming lines. So these are incoming telephone lines. These telephones are actually connected to different household. या अलग अलग घर पे ये कनेक्शन किया हुआ है, अलग अलग घर में ये केबल सब गया हुआ है. So now what happens is, ideally these switches are not connected. इसमें कुछ इस तरह का बना हुआ है. The lines are there.
Okay, I am not drawing the lines right at this moment. I will eventually draw the lines. Again, try to understand this concept. This is kind of a switch is here. A switch is here. ये स्विच कहाँ लगा हुआ है? हमारे घर के बगल का इलेक्ट्रिक पोल में लगा हुआ है कहीं पे। इसमें क्या है? देयर आर इनकमिंग लाइन्स 6. Now these can be here, the outgoing lines can be 6, can be less than 6. Okay, so 1 2 3 4 5 6 हम मान लेते दोनों इक्वल है. These are the incoming lines, यानी अलग अलग घर का टेलीफोन लाइन्स जो है इसमें आके जुटा है. Now from here there is a outgoing line which goes to, I told you, the DP box. ठीक है. Here also there are switches. Here also there are switches. इस तरह के switches बने हुए हैं. ठीक है. Just giving you an example to make you understand. यहाँ से this line goes to the exchange. Say, for example. तो these are switches again made. अलग अलग तार यहाँ से आया हुआ है. Now what happens? Say I want to call somebody. Okay. If you understand this architecture, let me again redraw another figure. ठीक है. हम एक और फिगर इसमें ड्रॉ कर रहे हैं. वो कुछ ऐसा है. This is my telephone. ठीक है. This is my telephone. This one is connected to a switch. Okay. And then from here it comes to another bigger switch, DP box. From there it goes to exchange. So here my friend who also has a telephone, who also has, say, another telephone, so then he is also connected to a pole where there is a switch, and then there it is also connected to a bigger switch, DP box, and from there he is also connected to exchange. But then there is no directed telephone connection between me and my friend. ये सब टूटा टूटा हुआ है because everybody else is connected to this particular circuit, this particular network. कहने का मतलब ये है कि there are also other people, other telephones which are also connected to this network. यहाँ connected है, यहाँ connected है. So that means there is no direct line between me and my friend, because यहाँ इस switch से भी there can be n number of telephones connected. यहाँ पे भी बहुत सारा connected. So these are not dedicated directly connected line. एक दूसरे से जुड़ा हुआ ये line नहीं है, सब अपना अपना switch से जुड़ा हुआ है. Now what happens? As soon as I make a call to my friend, then what will happen is this call will first go to this switch. इस switch में जाएगा. इस स्विच में हो सकता है कि उस समय आउटगोइंग लाइन में ये वाला खाली हो, तो ये हमको क्या करेगा? यहां जोड़ देगा. जहां जोड़ेगा, दिस वन गोज टू थ्रू दिस वन टू द डीपी बॉक्स. यहां पे भी कोई स्विच कनेक्शन जो है वो ऑन हो जाएगा. यहां से ये यहां जाएगा. सो देन देयर अगेन हो सकता है कि सम स्विचिंग जो है ये हमको क्या करवाएगा? इट में कनेक्ट मी दिस वे. फिर यहाँ जो है इट में कनेक्ट मी दिस वे. यहाँ जो है इट में कनेक्ट मी दिस वे. देन व्हाट हैपन्स इज, इफ व्हेन ऑल द स्विचेस आर स्विच्ड ऑन, ये इस तरह से ऑन होता होता चला गया, then eventually there is a direct connectivity between me and my friend is established and we can start talking. ठीक है, बिकॉज इस स्विच से ये आदमी कनेक्टेड है, और चूंकि इस स्विच से ये आदमी कनेक्टेड है, दैट इज वाई व्हाट कैन बी डन इज ही कैन डायरेक्टली, आई कैन डायरेक्टली टॉक टू माई फ्रेंड नाउ. और ये ऐसा लगेगा एज इफ देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड. बिकॉज अब जब हम कनेक्शन काटेंगे, जहां हम बोलेंगे ओके थैंक यू बाय बाय, तो ऑल दीज स्विचेस विल बी कमिंग बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन. ये फिर जो है दिस विल बी स्विच्ड ऑफ, ये कट जाएगा. अगर ऐसा हुआ
कि नाउ अगर हम जब रिंग कर रहे हैं इसमें से कोई भी खाली नहीं है, बिकॉज आई टोल्ड यू दीज आउटगोइंग पोर्ट्स कैन बी लेस देन द इनकमिंग पोर्ट्स, ये भी हो सकता है। तो अगर हमको कोई खाली नहीं मिला, या तो यहां नहीं मिला या यहां नहीं मिला या यहां नहीं मिला, आई विल गेट अ बिजी लाइन। Nowadays they have given you a facility of call holding, वो होल्ड आता है या कॉल वेटिंग, you can hear that. That is called another, that is a different concept, that is called a non-blocking network. But ये कॉन्सेप्ट से क्या हुआ, you can understand, अब है कि हमारे टेलीफोन से 1 करोड़ तार नहीं निकला। Now using these switches, because इस स्विच से भी there are very many people connected, इससे भी वेरी मेनी पीपल आर कनेक्टेड, इससे तो है ही कनेक्टेड, सो देयर आर, ये तो हम डायग्राम बनाने के लिए बनाए, बट देयर कैन बी सिमिलरली 1 लाख सच स्विचेस एंड देयर आर स्विचेस एंड स्विचेस। तो मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का जो हार्ट है दैट इज व्हाट इज स्विचिंग, और ये स्विच करवा के ही किया जा रहा है, दे आर एस्टैब्लिशिंग अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, ये काम हो रहा है। पहले क्या होता था, यू नो देयर यूज्ड टू बी, हम लोग बोलते थे देवर बार एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंजेस पहले होता था बार एक्सचेंज। बार एक्सचेंज में होता क्या था, यू नो, हम, मेरा टेलीफोन में वो डायलर नहीं हुआ करता था उस समय, लेकिन हम ऊपर का जो 2 स्मॉल बटन से उसको दबाते थे, तो यहाँ एक ऑपरेटर बैठा हुआ है, एक बड़ा सा जोन है, वहाँ पे एक ऑपरेटर बैठा हुआ है, और वो ऑपरेटर बैठ के क्या कर रहा है, देयर इज अ ह्यूमन बीइंग सिटिंग हियर, और वो कर क्या रहा है, हम इसको जहां कॉल किया तो इसके यहाँ पे लाइट जलना शुरू हुआ, तो इसको पता लगता था कि इस लाइन से कॉल आ रहा है। हम उसको बोलते हैं कि अच्छा भाई लाइन नंबर 3 से मेरा कनेक्ट करवा दो, तो ये करता क्या था, एक तार लेके इस कनेक्शन और इस कनेक्शन को जोड़ देता था, मैनुअली जोड़ता था, एक तार लेके दोनों को, तो जोड़ दिया तो इस आदमी के पास रिंग जाना शुरू हुआ, ये उठा के दोनों बात करना शुरू कर दिया, दोनों का बात हो गया, करता क्या था, इस तार को फिर हटा के छोड़ दिया। ओके, तो इस तरह से आउटगोइंग वायर्स जो है, हो सकता है कि इसके पास 3 ही हो, लेकिन इनकमिंग वायर्स जो है इसके पास 5-6 हो। तो होता क्या है कि ये आदमी बात कर रहा है इससे, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया। अब अगर कोई आदमी इससे बोल रहा है कि हमको जोड़ो, तो बोलता था कि सर लाइन खाली नहीं है, जहां खाली होगा हम आपको सूचित करेंगे। तो ये पुराना जमाने का कॉन्सेप्ट था, दीज वेर कॉल्ड बार एक्सचेंज। टेलीफोन एक्सचेंज इस तरह से काम करता था, हम लोगों को टेलीग्राम बुक करवाना पड़ता था। But nowadays the concept have changed and now they use sophisticated automatic switches. यहाँ पे कोई आदमी switching नहीं करवा रहा है, depending on the lines available they are switching, these are connecting to the outgoing port, they are connecting to the outgoing port and this is how the communication process takes place. तो चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्किट ऑन होता जा रहा है, एक सर्किट ऑन हुआ, एक सर्किट ऑन हुआ, सर्किट ऑन हुआ, सर्किट ऑन हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक में इतना सारा सर्किट ऑन हो के आई गेट दिस डायरेक्ट कनेक्टिविटी। So since there is a circuit switching on, this entire concept is called circuit switching. This entire concept is known as circuit switching. So circuit switching, this was earlier the bar exchange, and now circuit switching takes place. So this is what is the concept of switching, and this is what is called circuit switching. Now comes the question कि what is there inside a switch then? ये switch के अंदर जो है वहाँ पे क्या होगा? What is there? So let us go back to our previous slide. So here you can see what we write is, we write communication via circuit switching involves 3 stages. It involves basically 3 stages. What are they? That is called circuit establishment, then data transfer and then circuit disconnect. तो एक स्विच के अंदर, स्विच का काम ये चीज है, क्या, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सर्किट, ट्रांसफर एंड सर्किट डिस्कनेक्ट। कहने का मतलब इट इज हियर, जहां हम कॉल किए तो ये जो आउटगोइंग पोर्ट के साथ एक कनेक्टिविटी जुड़ गया, that is what is your circuit establishment. Okay, अब जब सर्किट एस्टैब्लिश्ड हो गया, दैट मीन्स इस तरह ये जुड़ते चला गया, यहाँ एक जुड़ता चला गया, यहाँ एक जुड़ता, दैट वे आई एम कनेक्टेड टू माई फ्रेंड इज हियर। तो देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड, डायरेक्ट कनेक्शन हो गया।
अब जब डायरेक्ट कनेक्शन हो गया तो क्यों ये डायरेक्ट कनेक्शन हुआ? सो दैट देयर इज डेटा ट्रांसफर. डेटा ट्रांसफर हो जाने के बाद whenever we say goodbye to each other, these switches should go back to their initial original state, यानी सर्किट डिसकनेक्शन. तो एक मॉडर्न डे स्विच का ये काम है और सर्किट स्विचिंग इन्वॉल्व्स ऑल दीज स्टेजेस. सर्किट एस्टैब्लिशमेंट फॉलोड बाय डेटा ट्रांसफर एंड फॉलोड बाय सर्किट डिसकनेक्ट. ओके, नाउ सर्किट स्विचिंग में एक चीज तो हमको याद जरूर समझ में आ रहा है या याद जरूर पड़ रहा होगा कि whenever there is the switch, whenever there was this switch, जब भी हमारे पास एक स्विच है तो ये स्विच से जो बाहर जो लाइन जा रहा है, ये लाइन इज अ हाई स्पीड हाई बैंडविड्थ केबल. सो डेफिनेटली इट इज डूइंग समथिंग दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. Whenever there is data going, यानी नॉर्मल वॉइस ग्रेड डेटा, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग प्रेफर करेंगे, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, द लाइन इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स और एक एक आदमी एक एक चैनल यूज करके बात कर रहा है. टाइम डिवीजन अगर वहां यूज करते तो क्या होता, ये अगर मेरा चैनल था और हम अगर टाइम डिवीजन कॉन्सेप्ट यूज किए होते फॉर वॉइस ग्रेड कम्युनिकेशन, तो ये तो टाइम स्लॉट्स इस तरह से होता और इस तरह से होने से क्या होगा, हमको एक बार लाइन 1 का बात सुनाई दिया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 1 का, तो हमको तो रुक रुक के आवाज आता. सो दिस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज नॉट यूज्ड इन वॉइस ग्रेड कम्युनिकेशन, वेयरएज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड इन वॉइस ग्रेड कम्युनिकेशन. ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपेंस, व्हाट वी कैन से इज कि यहां पे जो लाइन है, ये लाइन या तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज करेगा या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज करेगा, डिपेंडिंग ऑन what kind of a communication we want to have. Then this is the working of a switch. But then let us now concentrate on data, the switches which deal with data. So a digital switch का हम बात करेंगे. So the diagram of the digital switch is like this. This is the diagram of the digital switch. You can see these are full duplex input lines. The line here written is full duplex. Full duplex. Okay. This part is called the network interface. Network interface. Okay. Network interface कहने का मतलब है this is nothing but the ports. These are the ports. माने एक switch अगर if you want to see an original switch, so you will see एक इस तरह का डब्बा बना हुआ होता है. ओके, और उसमें देर आर लैन पोर्ट्स मेड, या तो लैन पोर्ट्स या यूएसबी पोर्ट्स आर मेड, इस तरह सा बना हुआ होता है. यू कैन वी कैन डेफिनेटली रेफर टू द इंटरनेट इन ऑर्डर टू see the types of switch. If you want to see the types of switch, I can show you that also. Say now you have this network switches. So you can see the diagram of network switches, right? Not the block diagram, but if I just want to see the switches, these are the switches. You can see these are the switches. There you can see these are the ports made to connect. This is nothing but a simple switch. This is a switch made by a company dealing different types of switches are there. You see those many ports are there where you can connect. So this is what is your network interface. That is what I mean by the term network interface. So now that is the network interface, and here this one is called the control unit. This is called the control unit, right? This one is the control unit. This is the full duplex communication lines. The input lines are there, and this is the network interface. I showed you already how they look like. So now what is this full duplex? Communication actually is of three types.
अगर हम नॉर्मल कम्युनिकेशन का बात करें तो वन इज कॉल्ड सिंप्लेक्स, अनदर वन इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स, and the other one is called full duplex, that is full duplex. Simplex means only one person talks and the rest of them they can only listen. ये आदमी ये वापस बात नहीं कर सकता. Only one person will talk. That means it's kind of a broadcast. Radio communication is kind of a simplex communication. This half duplex communication is nothing but kind of a wireless communication, when you have seen that there are two people holding the wireless sets, and what they do is they if he has to talk, he presses a button and then he talks, and eventually once his talk is over he says over. Over means मैं आपको hand over कर रहा हूँ. Then that person will press his voice button and then he will start talking. तो एक बार में एक ही आदमी communicate कर पा रहा है, one at a time. So that is what is called half duplex. Whereas full duplex is normal telephone line where both parties can communicate at the same time. Over and out या कोई अलग सा बटन दबाने का जरूरत नहीं होता. So these are those full duplex lines. Okay, and these eventually you can see this is a switch. These are switches. और ये लाइन जो है इवेंचुअली ये आउटगोइंग लाइन है, ये बाहर चला गया, इट गोज टू सम अदर स्विच में भी समवेयर, some DP box or somewhere. तो these are the lines connected to the central line. You can see इस सेंट्रल लाइन से ये कनेक्टेड है. तो अब हमको देखना है कि इनका काम क्या है. तो काम ये है इनका, द वर्क इज सच दैट कि इन डुप्लेक्स लाइन का काम क्या है. ये तो पोर्ट में हम लगा दिए नेटवर्क इंटरफेस एलिमेंट. ये तो इस नेटवर्क इंटरफेस एलिमेंट में हम क्या किए, इन सबको ले आके लगा दिए. ओके, फुल डुप्लेक्स लाइंस को. देन ये नेटवर्क कार्ड है जो कि ये संभाल लेगा कि हाउ दीज आर कनेक्टेड. देन कम्स द जॉब ऑफ द कंट्रोल यूनिट. सो नाउ व्हाट द कंट्रोल यूनिट विल डू. कंट्रोल यूनिट का काम 3 इंपॉर्टेंट काम है. ठीक है. पहला, अगेन इट एस्टैब्लिशेस कनेक्शन. इट establishes connections. Number 2, it maintains connection. And number 3, it disconnects the switches. Okay. Now कंट्रोल यूनिट किस तरह से काम करेगा. जहां यहां से कोई आदमी कॉल किया, यहां से कोई आदमी कॉल किया, मानते हैं इसको इसी से बात करना है, फॉरगेट अबाउट द आउटर नेटवर्क. इसको आउटर नेटवर्क को अभी हम भूल जाते हैं. हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि ये आदमी जो है ये इस आदमी से बात करना चाह रहा है. सो व्हाट विल इट डू इज इट विल सेंड अ रिक्वेस्ट. कैसे? आइदर बाय कॉलिंग, बाय डायलिंग, इट विल मेक अ रिक्वेस्ट. तो जहां ये रिक्वेस्ट आया फ्रॉम एन अटैच्ड डिवाइस, ये क्या करेगा, इट विल ट्राई टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन. इट विल ट्राई टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन. और इसका काम है कि भाई कनेक्शन दोनों के बीच में बना दें और इस पार्टी को इन्फॉर्म कर दें कि हाँ भाई अभी आप कनेक्टेड हैं. तो दिस इज द जॉब ऑफ द कंट्रोल यूनिट, पहला काम. अब दूसरा काम क्या है, ये जो लाइन है दिस इज ऑल्सो हाई स्पीड केबल. यू कैन दो देयर आर स्विचेस, बट ये स्विचेस सब एक लाइन से जुड़ा हुआ है, एक सेंट्रल लाइन से जुड़ा हुआ है दीज स्विचेस. एंड यहां पे क्या हो रहा है, देयर इज TDM गोइंग ऑन. दैट मीन्स टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग गोइंग ऑन. डेटा ट्रांसफर का बात कर रहे हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग गोइंग ऑन यहां पे. सो देन द कंट्रोल यूनिट क्या करना होगा, इट मस्ट मेंटेन द कनेक्शन. बिकॉज ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग अगर यहां पे चल रहा है तो ये हो सकता है कि ये दोनों बात कर रहा है, तभी कोई और भी बात कर सकता है इस लाइन को यूज करके. मल्टीप्लेक्सिंग चल रहा है, दे कैन यूज द लाइन. सो अगर मल्टीप्लेक्सिंग चल रहा है उस समय यह आदमी इससे बात करना चाहता है, यह आदमी इससे बात करना चाहता है. सो देयर नीड्स टू बी कांस्टेंट मैनिपुलेशन गोइंग ऑन कि कैसे करें, किस जगह पे स्कैनर जाएगा, यू नो स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में कैसा होना है. सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द कंट्रोल यूनिट. सो व्हाट वी सेड इज कि पहला कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या है
कि जब कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि आई वांट टू टॉक टू दिस वन, सो देन इट विल फर्स्ट एस्टैब्लिश द कनेक्शन. कैसे एस्टैब्लिश करेगा? इसको तो ये भी देखना पड़ेगा कि भाई ये आदमी उस समय फ्री है या नहीं, ये आदमी किसी और से बात नहीं कर रहा है, ये भी इसको पता होना होगा. सो इट विल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर दिस पार्टी इज फ्री और नॉट. अगर फ्री है तब वो कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देगा, ठीक है. और उसके बाद इसको बता देगा कि हाँ भाई आपका कनेक्शन जो है किया हुआ है. और उसके बाद जो है चूंकि यहाँ टीडीएम चल रहा है, सो टीडीएम को भी उसको मैनिपुलेट करना होगा, तो इट मस्ट मेंटेन द कनेक्शन दैट वे. ये नहीं कि ये आदमी इसके साथ, दूसरा आदमी ये आदमी इसके साथ बात करना चाहा तो इसका कनेक्शन कट गया. नो, बिकॉज दे आर यूजिंग द सेम बस, दे आर यूजिंग द सेम बस. बस मीन्स लाइन, चैनल, केबल. They are using the same cable and using TDM, time division multiplexing, so that is why it needs to maintain the line. And third point क्या करना है उसको? जब ये सब काम हो गया, when the communication process is over, the switches should go back to its original off condition, so that कि अब अगर ये आदमी चाहे कि इससे बात करना, ये switch फिर खाली हो गया, तो these two can be connected based on the request by this fellow. The control unit will find out whether he is free or not. If he is free, the connections will be there. He will be made. He will be told that okay, आपका connection जुड़ गया है. Now you can start communication. So this is what is the job of the control unit. These were the 3 tasks by the control unit. Now यहाँ पे 2 important concept आता है. One concept is called a blocking network. Blocking network, and another one is called a non-blocking network. Non-blocking network, ठीक है. Now blocking network क्या है? Blocking कब होता है? माने हम रोक दिया दूसरा को. जब ये दोनों आदमी बात कर रहा है, उस समय this fellow person A wants to talk to person C. So, but he is not available. So then what happens is the network is not able to connect the 2 stations because the possible paths between them, they are now occupied. तो इस तरह का काम अगर होगा, so that is what is called a blocking network. All the paths between them are busy. किसी इसमें इसको समझा पाना थोड़ा आसान नहीं है. We will discuss it in a different place, but just try to understand. Blocking network कहने का मतलब है when the switch is, the control unit is not able to connect the 2 stations because all the paths to the desired station are busy. So these type of networks are called blocking network. लेकिन non-blocking network क्या है? Non-blocking network का कहना क्या है कि all the pairs of stations are granted all possible connections as long as the called party is free. जो भी पार्टी जिसको भी कॉल कर रहा है उसको हम कनेक्शन दोनों पेयर में डाल दे रहे हैं एज लॉन्ग एज दिस इज फ्री. अब ये अगर फ्री नहीं है तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, बट अदरवाइज बेस्ड ऑन डिमांड दीज आर कनेक्टेड इन पेयर्स. देन दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ नॉन ब्लॉकिंग. एंड ब्लॉकिंग नेटवर्क मीन्स कि वहां तक पहुंचने का कोई चारा ही नहीं है यूजिंग एनी स्विच. ऑल द पाथ्स टू दैट स्टेशन आर नॉट अवेलेबल. देन दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ ब्लॉकिंग नेटवर्क. सो दैट इज व्हाट इज अ ब्लॉकिंग नेटवर्क एंड non-blocking network. Now we will try to see something. ये circuit switch जो है, ये circuit switch is again divided into 2 different parts. One is called space division switching, space division switching, and another one is time division switching, right? One is called space division switching. Space means जगह, space means आकाश नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे. We mean space means normal space. हम बोले बैठने का जगह है तो I want some space to sit. That kind of a space. So space division switching and time division switching. So time division switching is what is nowadays utilized. आज के दिन में जो भी यूज हो रहा है that is nothing but a time division switching. ठीक है. तो टाइम डिवीजन स्विचिंग अगर हम पहले देख लेना चाहते हैं कि व्हाट इज टाइम डिवीजन स्विचिंग, सो इट इज नथिंग बट द प्रीवियस स्विच जो हम देख रहे थे. यहाँ पे क्या है? these are the switches, the same diagram.
these are the switches connected to a high speed bus. Connected to a high speed bus which has got a very high channel capacity. इसका channel capacity बहुत high है और इससे जो है these are connected. This is connected. और ये जो है यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है? When they require to be connected, तो ये लाइन जो है this line will be connected and this line से इससे बात करना चाहता है, so this line will be connected. That means there is a data transfer between these two. Similarly ये दोनों के बीच होगा तो इस तरह से होगा. So लेकिन ये जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, they follow here, the concept followed here is time division multiplexing. So these are TDM bus switches. TDM bus switches. This is what is the TDM bus. Bus is, I told you, it's a channel. यानी एक सेंट्रल लाइन बना हुआ है, उसमें से सब लोग हैं, इसमें कनेक्शन ऐसे ऐसे लोग कनेक्टेड नहीं है, खुला हुआ है. जिसको कनेक्शन चाहिए वो इस लाइन से जुड़ जा रहा है, इसको इससे बात करना है तो इसको भी जोड़ दिया जा रहा है, दोनों आपस में बात कर रहा है. जब खत्म हो गया बात, so this channel has to be removed. This channel will be removed. It will be over और फिर ये वापस अपना ऑफ स्टेज में चला जाएगा. So that kind of switches or that kind of a switching technique is what is called TDM bus switching. So time division switching or TDM bus switching, time division multiplexing bus switching. The bus is this one. Fine. Now let us talk about space division switching. तो space division switching का अगर हम बात करते हैं तो let us go to the next slide. Now see here, this is what is a space division switch. This is what is a space division switch. क्या किया गया? Let me show you. मान लेते हैं 4 टेलीफोन है इस दुनिया में, तो उसके बीच में कनेक्शन कुछ इस तरह से किया गया. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. And these connections जहाँ पे joints हैं, जिस जगह पे joints हैं, these joints were marked properly. Okay, so these joints, what happens is these joints are marked properly, and these joints are actually called cross points. These are called cross points. Okay, so cross points से क्या हो रहा है? Let me tell you one thing. स्टेशन 1 डेफिनेटली अपने आप से बात नहीं करेगा, तो लेकिन ये कनेक्शन इस तरह से बना हुआ है. ओके, नाउ स्टेशन 1 अगर 2 से बात करना चाह रहा है, यू कैन सी 1 का लाइन जो है, 1 का लाइन ये इस 2 के लाइन से कहाँ जुड़ा हुआ है? यहाँ पे. सो दैट मीन्स हियर व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि एट दिस पॉइंट, ये क्रॉस पॉइंट को यूज करके स्टेशन 1 कैन टॉक टू स्टेशन 2. यानी इसका केबल और इसका केबल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये क्रॉस पॉइंट जब यूज होगा 1 कैन टॉक टू स्टेशन 2. 1 को 3 को से बात करना तो दिस क्रॉस पॉइंट, 1 को 4 से बात करना तो दिस क्रॉस पॉइंट, 2 को 1 से बात करना है तो दिस क्रॉस पॉइंट, 2 को 2 से नहीं बात किया जा सकता, तो ये तो कोई काम का ही नहीं, ये बात ये कोई काम का नहीं. सो दिस क्रॉस points they are utilized to establish connection between 2 different stations. ठीक है. So now what happens is, because it is called space division, क्यों इसको space division बोला गया? It is because the signal paths are physically separate from one another. जो भी path है ये एक दूसरे से separate है, 1, 2, 3, 4, these are all separated from each other, and every connection
requires the establishment of a physical path through the switch that is dedicated solely to the transfer of signals between the two endpoints. This line is written in the book. कहने का मतलब है ये जो क्रॉस पॉइंट है 1 और 2 के, 1 अगर 2 से बात करना चाहता है तो इसके अलावा इसके पास और कोई ऐसा जगह नहीं है जिसके थ्रू से ये 2 को कनेक्ट कर जाए. दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज इनकमिंग लाइन. ये ऐसा नहीं कि इससे कनेक्ट करे. 2 कैन कनेक्ट टू 1 यूजिंग दिस. 1 को 2 से कनेक्ट करने के लिए दिस इज ओनली 1 पॉइंट. 3 को 4 से कनेक्ट अगर करना है तो दिस विल बी द ओनली पॉइंट. लेकिन 4 को अगर 3 से कनेक्ट करना है तो दिस इज द ओनली पॉइंट. सो व्हाट इट सेज इज कि ईच कनेक्शन रिक्वायर्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फिजिकल पाथ थ्रू द स्विच that is dedicated solely to the transfer of signals between the two endpoints. ठीक है? So then we go back to our, ये तो एक 4 लेके हम समझा रहे थे. We go back to our previous one. You can see here हम 8x8 का एक स्पेस डिवीजन स्विच बना दिए. 8x8 का. तो इसमें you can see ये वाला चीज तो कोई काम का नहीं होगा, you know. This one is of no use. Okay, I'm sorry. 8 and 1 is there. It is just the opposite. It is just the opposite. These cross points will be of no use because of the pattern numbering. ये cross points कोई काम कर नहीं. 8 को अगर 1 से बात करना हो तो this cross point will be utilized. This is the joining point of 8 and 1. Fine. So then लेकिन इस स्विच का ये वही बार एक्सचेंज वाला स्विच है. पहले ऐसा ही होता था. ठीक है. सो देन अब इसका कुछ लिमिटेशन है. व्हाट आर द लिमिटेशन? द लिमिटेशन इज द नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट ग्रोज विद द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ अटैच सिचुएशन. एक अगर स्टेशन बनाए ना, यहाँ पे एक अगर 9th बना दे, 9वां नंबर बना दे यहाँ, और इससे एक 9th वायर हम अगर बना दें तो यहाँ क्रॉस पॉइंट सब बढ़ता जाएगा. एंड यू विल फाइंड दैट द टोटल नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स इन दिस केस बिकम्स इक्वल टू 81 बिकॉज 9 का स्क्वायर हो गया. 9 अगर 9 चैनल्स अगर हैं उसमें अगर हमको कनेक्टिविटी बढ़ाना है, सो जो क्रॉस पॉइंट जो बढ़ेगा दे ग्रो विद द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ द अटैच स्टेशंस which becomes very costly for a large switch. तो इसका एक लिमिटेशन ये हो गया स्पेस डिवीजन स्विचिंग. दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा प्रॉब्लम इसके साथ क्या है कि अगर 8 को 1 से बात करने के लिए सिर्फ यही क्रॉस पॉइंट है, ओनली दिस क्रॉस पॉइंट इज अवेलेबल 8 को 1 से बात करने के लिए. तो अगर ये क्रॉस पॉइंट किसी कारण से अगर डैमेज हो गया, इफ दिस इज डैमेज्ड, तो देन 8 जो है 1 से और किसी तरीके से बात नहीं कर सकता. ठीक है. सो वी कैन से द लॉस ऑफ ए क्रॉस पॉइंट प्रिवेंट्स कनेक्शन बिटवीन द टू डिवाइसेस हुज लाइंस इंटरसेक्ट एट दैट क्रॉस पॉइंट. तो इस क्रॉस पॉइंट पे किसका किसका लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है? 8 का और 1 का. तो 8 और 1 जो है, माने 8 1 से और बात नहीं कर सकता इफ दिस क्रॉस पॉइंट इज डैमेज. 1 8 से जरूर बात कर पाएगा बिकॉज दिस क्रॉस पॉइंट इज ओके, दिस इज ओके. लेकिन 8 1 से नहीं बात कर पाएगा बिकॉज इट्स क्रॉस पॉइंट इज डैमेज्ड. और तीसरा, द क्रॉस पॉइंट्स आर इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. ओके, व्हाई? इवन व्हेन ऑल द अटैच्ड डिवाइसेस आर एक्टिव, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द क्रॉस पॉइंट्स आर एंगेज्ड. कहने का मतलब ये बोला जा रहा है कि ये जो क्रॉस पॉइंट इतना सारा बना लिया, 8 लाइन के लिए 64 क्रॉस पॉइंट बना हुआ है, तो दीज आर वेरी इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. मान लेते हैं कि 8 जो है 1 से बात कर रहा है तो दिस इज एंगेज्ड. 7 जो है वो 6 के साथ बात कर रहा है तो दिस इज एंगेज्ड. 6 जो है 3 के साथ बात कर रहा है तो दिस इज एंगेज्ड. 5 जो है 4 के साथ बात कर रहा है तो दिस इज एंगेज्ड. ठीक है. ओके. 4 अभी किसी से बात नहीं कर सकता, दिस इज ऑलरेडी एंगेज्ड. 3 किसी से बात नहीं कर सकता, दिस इज ऑलरेडी एंगेज्ड. 2 जो है वो बात कर रहा है 5 से, नो 5 इज एक्चुअली एंगेज्ड. 2 जो है वो बात कर रहा है से 1 से. ओके.
So you can see here 7 is talking to 6 using this cross point. Okay, 2 जो है 1 से नहीं बात कर सकता because this is already occupied. This part is already occupied. So 2 हमारा खाली है अभी भी. 2 can talk to which one? 2 can only talk to, you can see line number 3 is not vacant, line number 4 is not vacant, line number 8 is booked, line number 8 is booked, 8 and 1, let me write it somewhere, 8 and 1 connected है, 7 and 6 connected है. This is wrong. 7 and 6 is connected, that means these cannot be connected. So then 6 say is connected to 3. That can be done? No. 6 cannot be connected because 7 is already connected to 6. So this cannot be done. 6 cannot be connected anymore. Now 5 is connected to 4. 5 is connected to 4. Okay. So we are left with 2 stations which are not being used. One is station number 2. Another one is station number 3. So 2 can talk to 3 using this cross point. So 2 is talking to 3. तो कहने का मतलब ये हुआ, now all of them are occupied. ये इससे बात कर रहा है 8 is talking to 1, 7 is talking to 6, 5 is to 4 and 2 is to 3. तो सब के सब blocked है. तो block हुआ तो कितना cross point use हो? Only 1, 2, 3 and 4. So that is what it says. The cross points are inefficiently utilized. Even when all of the attached devices are active, only a small fraction of the cross points are engaged. So these are the limitations of the space division switching. अब इसका ये प्रॉब्लम था तो हुआ कि क्रॉस बार को और इस तरह का कनेक्शन को हटाना था. एक क्रॉस बार पॉइंट खत्म हो गया तो पूरा कनेक्टिविटी खत्म हो जा रहा है. सब के सब अगर ऑक्यूपाइड है तो वेरी लेस नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स आर यूज. अब अगर ऐसा है कि ये है कि हम एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं तो द क्रॉस पॉइंट्स इंक्रीजेस बाय द स्क्वायर ऑफ द इन नंबर ऑफ लाइंस. तो बड़ा झमेला है. तो इनसे हटने के लिए they have found out multiple stages switches, multiple stage switching. What is that? Let us come to this figure. What is multiple stage switching? You can see this is one switch. This is one switch. Here is a line. It is not visible to you. There is a line here. यहाँ पे भी there is a line. How to yeah, there is a line here which was not visible to you otherwise because of the color scheme maybe. Similarly here there is a line. This point there is a line. Here also there is a line, right? Okay, and here also there is a line. This line connects here. Similarly, here also you cannot see these lines because of probably the color they have used, and this is also connected. This is also connected. So this is the total figure. So now you can see one thing. Now you can see one thing. If this is a switch, there are 1, 2, 3, 4 and 5 lines connected. This is 6, say this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.
here also it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is connected to a switch. इस switch में दो line है. So these two lines are connected to, these incoming lines are connected to both these lines. ये इस line और इस line दोनों इससे भी connected है, इससे भी connected है. You see these points are connected. So all these points are connected. So this connection is of course there. अब ये line जो है, this is connected to this switch and this line is connected to this switch. Okay. Similarly here also these are connected. These are all joined. ये joined lines हैं. ये line जो है, this is connected to this switch and this line is connected to this switch here. यहाँ पे भी there are two lines. These are connected and here also there are two lines. These are connected. So one goes here and the other comes below. Similarly here one goes this side and the other comes below. What is there to make you understand? कहना क्या है कि station line number 1 wants to talk to line number 8. Okay? तो line number 1 इसको अगर follow किया, it will follow this line. यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, it will follow this line and eventually it will come to this side. Let me read this figure. It will come to this side. इस लाइन से आया, इस लाइन से 9 में जाना है तो यहाँ पहुँचा here and from here it connects using this point. It will connect to line number 9. Now by any chance say तो क्या हुआ, line number 1 is connected to line number 9 using this part. इसको use करके it is connected. यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से using this line it comes to this one and here. By any chance say this one is damaged. So then it can follow this connectivity. इसको लिया, इसको लेके it can follow this line. From this line it can follow this line. From this line it can follow this line and it can connect to point number 9. So here you can see what I have done is the switching process is divided in an efficient manner, so that there is one possible connectivity between two end stations. और जब ये होता है तो इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा था कि एक क्रॉसबार अगर डैमेज हो गया तो 8 और 1 से बात ही नहीं कर पाएगा, here it is not the case. There are two possibilities so that one can talk to the other. So this is what is the concept of multiple stage space division switching. Multiple stage space division switching.